तो हेलो वेलकम है भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आए बढ़ेंगे आगे बैठ रहे हैं, वेलकम अदर न्यू वीडियो। तो आज अपन रिएक्ट करने वाले मिस्टर बीस्ट की न्यू वीडियो। आधे घंटे पहले एक वीडियो आई है, तो अपन उसको रिएक्ट करने वाले, देखते हैं। Drop off on this 2,000-year-old ancient temple. Well, we're so high up. Dude, we're surrounded by jungle. See you later. Let's go see what we can find. In this video, we're going to be exploring dozens of ancient temples, all of which hide ancient Mayan secrets from the world deep underground. Everything you guys are seeing now, the Mayans didn't want us to see. Nobody gets to go where we're going, including exploring one of the 7 wonders of the world. But we only have 100 hours to make discoveries. Dude, I'm discovering these stairs are huge. Yeah, I want to find an escalator. Let's go discover the secrets of the Mayans. This is the door to the inside of this massive Mayan temple. Oh, that's a deep tunnel. Dibs on going first. That's fine with me. There's Knock booby yourself trap. out. This temple is over 2,000 years old. This is insane. We're inside an ancient temple right now. Where are we going? Oh my gosh. Oh wow. The first thing you see in this temple is this giant statue, which is supposedly the corn god inside of a jaguar's mouth. This is so beautiful. My gosh. I'm gonna tell you what I think this means, and you tell me what it means, okay? This is a hand. This is a parade. That's a toilet. Wrong. Okay. That is not his toilet. That is his earring. Yeah, Jimmy. So here's the thing. This place is actually a pyramid built on top of a pyramid. So the deeper we go in, the older things get. Be careful, boys. So sketchy, Jimmy. Can't believe the government's letting us do this. It really is crazy. Not even archaeologists are allowed to go back here. How deep underground are we? And after navigating this ginormous ancient temple, we finally made it to the end. Now that we're at the end, you said you had a surprise. Yes, this has been found in the last 2 decades. Whoa, what? It is a funerary mask. This is the face of one of the kings of the Snake Kingdom. The Mayans used masks like this one to shield those that have passed away from dangers on their journey to the underworld. Can I hold it? Yes. This was made over 1,000 years ago. Yes. Which means my great-great-great-great-great-grandparents weren't even alive. Why is this not in a museum? Why is a YouTuber holding this? Get this away from me. Take it, take it. Don't tell anybody. Okay, I totally won't show 200 million people. That's it for this temple, but we are in the middle of a giant city with multiple other ancient temples. And later in this video, even visiting the 7th wonder of the world. Let's find some treasure. This jungle is full of monkeys, snakes, and people have even died to jaguars here. Well, we survived Snake Island. Wait, no, is that a monkey? Sir! 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 Well, guys, this is where we're gonna be camping tonight. Oh, look at these hammocks. We still have over a dozen temples to explore. I need you guys to get some good sleep because this video is just getting started. Good morning, boys! Morning. First things first, we need to explore the rest of this massive abandoned city. And looking at it now, it's hard to imagine what it might have looked like. And so I'll just show you. Over 100,000 people used to live in this city. That's what that used to look like. This is what they think these roads look like. There were temples everywhere. It was flourishing. But on the inside, you'd witness magnificent artwork like this. Whoa. This is incredible. One of my favorite part of these videos is when we take old paintings and bring them to life. So this is our best estimation of what they represent. Bro, this is so cool. This is a rare glimpse into what the life of a Mayan looked like 2,500 years ago. This is amazing. No one really thought that was a llama. Can we talk about this? Colin, you thought that was a llama? चलो इसको ये करते हैं। थोड़ा बहुत कुछ बीच बीच में समझ नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि इतना कुछ इंग्लिश आता नहीं है। जरा देखो, मुझे लगा ये उसकी आंख, ये वो, और ये शायद उसका पैर है। और मुझे लगा तुम समझदार हो। और जैसे ही मैंने नोलन की खिंचाई की, उसने बदला लिया टरीक से, एक मकड़ी के साथ। रुको रुको, अब टरीक नहीं आएगा। मेरे दोस्तों का मस्ती करने का तरीका थोड़ा अजीब है, लेकिन मायंस तो और भी ज्यादा अजीब थे। हम उस जगह खड़े हैं जहाँ 2000 साल पहले एक बॉल कोर्ट हुआ करता था। ये दुनिया का सबसे पहला बॉल वाला टीम स्पोर्ट था, जितना हमें पता है, हाँ। और हाँ, हारने वाली टीम के कैप्टन का सर काट दिया जाता था। हाँ। मतलब मायन सन की थे। वो कितना बड़ा है। हाँ, सुंदर भी। आजकल ऐसे मंदिर क्यों नहीं बनते? करीब 2000 साल पहले राजा और रानी यहीं रहा करते थे, लेकिन 2500 साल पहले ये कुछ ऐसा दिखता था। हजारों लोग यहाँ इकट्ठा होते थे और अपने राजा की बस एक झलक देखने के लिए घंटों तक इंतजार करते थे। और आज ये ऐसा दिखता है। चलो देखते हैं। ठीक है।
2000 साल पहले शायद राजा यहीं खड़ा होकर अपने महल से खेल देखता था। काफी कूल है। ओह माय गॉश, ये तो एक भूल भुलैया जैसा है। हाँ, अगर तुम्हें राजा को सुरक्षित रखना है तो दुश्मन को भटकाना पड़ता है। अनेस्टो, सच बताओ, क्या किसी ने कभी खजाना ढूंढने के लिए इस सीट को दबाने की कोशिश की है? मैं तो ये बिल्कुल नहीं करता। तो फिर ये वाला? ओके, तो ये वाला? तुम कह रहे हो कि उन राजाओं ने 2600 साल पहले यहाँ कोई खजाना नहीं छुपाया? छुपाया होगा, पर ढूंढना मुश्किल है। राजा के खजाने को ढूंढने की उम्मीद में हम जंगल के समुद्र तट पर एक गुफा में पहुँचे, जहाँ शायद खजाना भाई होगा। जिमी ने चमगादड़ों के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। यहाँ कितने सारे चमगादड़ हैं। वो हमारे सिर के पीछे से उड़ के गए। मायान के लोग मानते थे कि ये गुफा धरती के राक्षस का मुंह है। अभी हमारे ऊपर देखो, हम चमगादड़ों से घिरे हुए हैं। यहाँ हजारों चमगादड़ घूम रहे हैं। मानो बैट्स का तूफान हो। यहाँ कोई खजाना है तो वो दबा है ढेर सारे चमगादड़ों के मल में। मुझे तो लग रहा है मुझे मेरा खजाना मिल गया। ये नजारा ही काफी है। अब चलते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा बैट्स है, जरा तेज चलो प्लीज। मुझ पे पोटी कर दी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये असली खजाना है। नोलन, यहाँ से निकलते हैं, जल्दी निकलते हैं, हमें निकलना होगा किसी भी हालत में। यहाँ कोई खजाना नहीं है। लेकिन एक और मंदिर बचा है जहाँ शायद खजाना हो सकता है, और क्योंकि अब अंधेरा हो गया है, चलो बॉयज मशाले जलाओ और चलो एडवेंचर पर चलते हैं। अगर मशाले उस प्राचीन मंदिर तक पहुँचने से पहले ही बुझ गई तो मुझे बहुत दुख होगा। मंदिर, मंदिर, मंदिर। इन मशालों के साथ एक्सप्लोर करना और भी कूल है। अब चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये एक एंशिएंट एडवेंचर की तरह है, पर फिर हमने जाना यहाँ रास्ता बंद है कि हमारा यहाँ आना बेकार था। हर जगह एक डेड एंड है। वो क्या था? लगता है ऊपर एक बंदर है। वो एक बंदर है या फिर कोई जैगुआर? अचानक से ये वीडियो इतना डरावना क्यों हो गया? आज रात अच्छे से सोना, क्योंकि कल सुबह तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगा कि इस वीडियो में हम बस इस शहर के प्राचीन मंदिरों में घूमेंगे? हाँ, हेलीकॉप्टर को वापस भेजो, क्योंकि आगे एक्सप्लोर करने के लिए हमें एक लिफ्ट की जरूरत थी। मैं तो इन सीढ़ियों पर डॉग की तरह चढ़ रहा हूँ। बस पहुंच ही गए। हो रही हमारी सवारी। हमें निकलना होगा। चलो और प्राचीन मंदिर एक्सप्लोर करें। और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे कमाल के और प्राचीन अवशेष हैं। और शुरुआत करते हैं इस जगह से। ये देखिए आपके सामने जो है, इसे मायंस कहा करते थे नर्क। इस जगह से ये देखिए आपके सामने जो है, इसे मायंस कहा करते थे नर्क का दरवाजा। पहले यहाँ बड़े बड़े दांत लगे होते थे, अब कहाँ गए वो गिर गया। अच्छा, जाहिर सी बात है। चलो एक्सप्लोर करते हैं। वाओ, ये कमाल है। यहाँ पर कुछ बहुत ही खास चीजें हैं जो मुझे पसंद आई, जैसे बीच की वो इमारत। वाओ, मेरा गैस है कि ये कोई मंदिर रहा होगा। क्या यहाँ बलि दी जाती थी? हाँ, बिल्कुल सही। यस, मेरा अंदाजा सही निकला। कितना चंपू है। उसकी टोपी उड़ गई। लेकिन जो चीज हमारा गाइड हमें दिखाना चाहता था वो थी ये गुफा। और मायंस मानते थे कि इंसान यहीं से इस दुनिया में आए। मायन लोग मानते थे कि इंसान इस गुफा से आए थे। उस गुफा के अंदर है जीवन का वृक्ष, और उनका मानना था कि हम सब उस एक ही खूबसूरत दिव्य पेड़ से निकलकर इस धरती पर आए हैं। ये जगह इतनी पवित्र है कि हमें यहाँ जाने से पहले गुफाओं की आत्माओं से अनुमति लेनी होगी। मैं शर्त लगा सकता हूँ उन आत्माओं को नोलन पसंद नहीं आएगा। और जैसे ही हम गुफा में घुसे, ठीक है, ये तो सच में पवित्र लग रही है। हमने वो रिचुअल देखा जिसके बारे में गाइड ने बताया था। और अब ये क्या कर रहा है? वो गुफा का प्रवेश द्वार शुद्ध कर रहा है। और यहीं पर हमें देवताओं की मंजूरी लेनी है। मुझे अपने लिए तो किसी बात का डर नहीं था, लेकिन क्या देवता सचमुच नोलन को इस पवित्र जगह में घुसने देंगे? उम्मीद है अंदर जाने मिलेगा। जो भी बुरी शक्तियाँ हैं वो चली जाए, स्वस्थ रहो। मुझे लगता है ठीक है। ये क्या कर रहा है? क्या ये जा सकता है? चलो, आत्माओं ने इसे इनकार नहीं किया। शुक्र है। तो अब जब भगवान हमारे साथ है, दिव्य पेड़ तक की यात्रा शुरू होती है। लेकिन जैसे जैसे हम गुफा के अंदर गए, गर्मी बढ़ती गई। ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है या यहाँ सच में बहुत गर्मी है? हाँ, गर्मी बढ़ रही है और आगे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल हो जाएगा। बहुत गर्मी है। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, हवा पतली होती जाती है। पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, पर मैं पसीने से भीग चुका ये हूँ। गुफा तो खत्म नहीं हो रही है। शुक्र है यहाँ कोई चमगादड़ नहीं है। जो कुछ भी तुम अभी देख रहे हो, मायंस नहीं चाहते थे कि कोई ये देखे। उन्होंने इसे दफनाने की कोशिश की थी। सोचो 2000 साल पहले यहाँ होना और इन खूबसूरत गुफाओं को देखना, और फिर आता है ये कमरा, वाह। और ये है वो दिव्य पेड़। ओह, क्या मैं अकेला हूँ जिससे लगा था कि दिव्य पेड़ सच में एक पेड़ होगा? हाँ, यही है वो सेक्रेड सीबा जो आसमान को थामे हुए हैं। और इसके आसपास जो बर्तन रखे हुए हैं, ये भी मायंस ने ही बनाए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जो लंबे वाले पॉट्स हैं, हाँ। उनमें धूप डालते थे और जलाकर भगवानों का ध्यान खींचते ये थे। काफी कूल है। अगर मैं हजारों साल पहले कोई मायन होता और मानता कि यहीं से इंसान आए थे, मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग इसे पवित्र क्यों मानते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ये गुफा खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन टैंक्स की जरूरत पड़ेगी। आखिर मैं इस तरह के वीडियोस बनाता ही क्यों?
ओह, ये तो बहुत गहरा है। मैं यहाँ क्यों आया? तो ऑक्सीजन खींचकर कुछ गहरी सांसें लेने के बाद हमें कितनी गहराई में जाना है? करीब 2 फुटबॉल फील्ड्स जो जितनी। फिर मैं यहीं रुकता हूँ। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। उसने कहा वहाँ ऑक्सीजन ही है। मुझे कुछ नहीं सुना। और शायद नोलन ने सही भी किया, क्योंकि जैसे ही हमारे गाइड ने हमें वहाँ की पहली चीज दिखानी शुरू की तो तुमने ओह, क्या मुझे चक्कर आ रहा है। और तुम ठीक हो? हे, हाँ ठीक हूँ। तुम्हें पसंद हो या ना हो, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। सांस लो। वैसे तुम क्या कह रहे थे? कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पड़े हैं यहाँ। वाह, ये कितना कूल है। मैं घर ले जा सकता हूँ? वेल, तुम्हें जेल हो जाएगी। मुझे जेल हो जाएगी? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं नहीं ले जा रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग सच में मान गए। कितने भोले हैं ये। सच में अब वक्त है इन्हें थोड़ा डराने का। इस सुरंग के सारे चमगादड़ को तो देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। रुको 1 मिनट, सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्या चमगादड़ इंसानों को काटते हैं? मैंने एक छुपने की जगह ढूंढ ली। यहाँ एक चमगादड़ है। जिमी जरा ये ऑक्सीजन ले लो। हम और अंदर जा रहे हैं। लो, तुम भी लो। हवा और पतली हो रही पर है। जैसे जैसे हम इसके एंड तक पहुँचे, इस सीक्रेट टनल का फाइनल बॉस हमारे सामने आ गया। तुम्हें वो ओके। स्टेलालाइटाइट्स दिखे? वो रुको, बिल्कुल। जिमी तुम्हारे पीछे दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी है। ओह माय गॉश, मायंस ने इन कीड़ों को क्या खिला दिया था? जरा सोचो, मायंस की इस गुफा में दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी इस पवित्र जगह के आखिर में क्यों है? किसी चीज की रखवाली कर रहे हैं। क्या सोचते हो? हो सकता है। तो फाइनल बॉस से लड़ने के बजाय हमने उस सुरंग को उसके रहस्यों के साथ छोड़ दिया। ओह माय गॉश, मेरी तो जान ही निकल गई। मैं तुम्हारे सर पर ये ऑक्सीजन टैंक फेंकने वाला था। वहाँ से जिंदा बच के निकलने के बाद हम पूरी तरह से थक चुके थे, तो हम अपने नए कैंप पर पहुँचे। क्योंकि न सिर्फ हमें दुनिया के 7वें अजूबे के लिए ताकत चाहिए थी, बल्कि डे 4 के लिए मैं जानना चाहता था कि मायंस मजे के लिए क्या करते थे। और शुरू करते हैं दुनिया का पहला टीम बेस्ड गेम, जिसमें एक बॉल थी। 3000 साल पहले मायंस ने पिट्स नाम का एक खेल इन्वेंट किया था, जहाँ आपको बास्केटबॉल की तरह एक छोटे से लूप में बॉल डालनी होती थी। बस इसमें हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फुटबॉल की तरह। पर क्या आपको याद है मैंने डे 2 पर क्या कहा था? हारने वाली टीम के कैप्टन का सर काट दिया जाता था। सर ये मुश्किल है। हम प्रैक्टिस करके सीख लेंगे। भले ही हमें बॉल को थोड़ा संभालना आ गया था, पर गोल स्कोर करना अब भी काफी दूर था। मैंने तो अपनी कैमरा क्रू को भी मदद के लिए बुला लिया था, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी हमें कामयाबी नहीं मिल सकी। ओके हम शायद कभी स्कोर ना करें, पर पुराने समय में हारने का मतलब था सर कट जाना। नोलन खड़े हो जाओ ब्रो। और ये नाकामयाबी का सिलसिला चलता रहा जब तक कि इस मुश्किल स्पोर्ट में अपने आप को थकाने के बाद बचे हुए खिलाड़ी इस बढ़िया से तालाब में डुबकी मार के मजे करने पहुंच गए। और भले ही मैं किसी का सर नहीं काटने वाला, पर नोलन पिट्स में हार गया था तो पहुंच गए। और भले ही मैं किसी का सर नहीं काटने वाला, पर नोलन पिट्स में हार गया था तो पानी ठंडा है क्या? तो काफी रिफ्रेशिंग ओ, है। अच्छा, हाँ, आ जाओ। ये पानी तो कमाल का है। कैसा लग तो नहीं रहा कि तुम्हें ये कमाल ओ, ये करेगा। बहुत ठंडा है। भले ही इस तालाब में तैरना मजेदार था, पर अभी भी सबसे कमाल का मायन मंदिर, दुनिया का 7वां अजूबा बाकी है। पर उससे पहले एक क्लासिक मायन डिनर। जो कुछ तुम यहाँ देख रहे हो, वो सब कुछ मायंस हजारों साल पहले खाते थे। और आपने वीडियो में सुना ही होगा कि ये मकई के देवता की पूजा करते थे। और अगर आपको नहीं पता कौन ही है टोटिया का मेन इंग्रेडिएंट, जो भी एडिट कर रहा है, क्या टाकोस मायंस ने इन्वेंट किए, हाँ या ना? हमारी आखिरी रात के नाम चीयर्स, मायन टाकोस के मजे लो। और इस रात के स्पेशल में हमारे पास है एक खास मायन डिजर्ट, हमारे ब्रांड न्यू फीस्टेबल्स पीनट बटर कप्स। रुको, ये नए हैं तो मायन डिजर्ट कैसे हुए? सवाल मत पूछो, ये एक डिजर्ट है। ये लो। मार्केटिंग का बादशाह यही है। जरा देखो कितना पीनट बटर है। कितने दुख की बात है ना कि कुछ लोग अभी तक इन ब्रांड न्यू फीस्टेबल्स पीनट बटर कप्स का स्वाद नहीं चख पाए हैं। तो अगर आपको एक एथिकली सोर्स्ड और स्वाद में लाजवाब स्नैक चाहिए, तो फीस्टेबल्स जरूर ट्राई ये करना। अच्छा है। पूरी धरती का इकलौता मायन अप्रूव्ड स्नैक। सोने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं देने वाला हूँ $5 लाख 10 रैंडम लोगों को जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मेरा बर्थडे आने वाला है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए 10 लकी सब्सक्राइबर्स को मिलेंगे $50,000। थैंक्स टू जैकलिंग्स, दुनिया की बेस्ट मीट जर्की, जिन्होंने मुझे ये कमाल का बर्थडे गिफ्ट दिया। अब मैं पेश करता हूँ दुनिया का 7वां अजूबा। और अब हमारी ट्रिप के आखिरी कुछ घंटे बचे हैं, और ये है वो पल जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। दुनिया का 7वां बचे हैं, और ये है वो पल जिसका आप सबको कुक कुलकान टेम्पल के कुक क्लान
बेसब्री से इंतजार था, दुनिया का 7वां अजूबा, टेम्पल ऑफ कुकुलकान। ब्रो ये तो बहुत कूल है। यकीन नहीं हो रहा है कि हम सच में यहाँ हैं। कुकुलकान को 7वां अजूबा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितना विशाल है उतनी ही अजीब इसकी आवाज भी है। मायंस ने इसे कुछ ऐसे बनाया है। लास्ट हो रहा है, थोड़ा मराठी में ले लेते हैं अपने महाराष्ट्र में। अलग अलग लैंग्वेज जितना जितना समझ आता है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर मराठी है ऑडियन्स। जर तुम्ही याच्या समोर टाळ्या वाजवल्या तर तुम्हाला असा आवाज येईल जणू काही लेझर तुमच्याकडे परत येत आहे। ठीक आहे, असो आपण इथे कशासाठी आलोय? या पिरामिडच्या वरच्या भागात एक मंदिर आहे जे स्थानिकांसाठी इतकं पवित्र आहे की तिथे वर जाण्याची कोणालाही परवानगी नाहीये। तर प्रश्न हा आहे की त्या प्राचीन खोलीत कोणते मायन रहस्य दडलेले आहे? ही संस्कृती आणि याला खूप पवित्र मानणाऱ्या सर्व लोकांबद्दल आदर असल्याने आम्ही या मंदिराला हात लावणार नाही। तर हे ड्रोन उडवून बघणार आहोत की त्या गुप्त खोलीत काय ठेवलं आहे। तुझी हरकत नाही ना? नाही, अजिबात नाही। ताबडतोब जा। अरे बापरे, हे किती भव्य आहे। मला खूप उत्सुकता लागली आहे की या रूम मध्ये काय आहे। एक मिनिट, आर्थर, ही खोली तर रिकामी आहे। 500 वर्षांपूर्वी स्पॅनिश लोक इथे आले होते आणि ते तिथलं बरंच सामान आपल्यासोबत घेऊन गेले। पण इतिहासकारांच्या मते सगळं काही चोरीला जाण्यापूर्वी जगातलं 7वं आश्चर्य असं दिसत होतं। यार, खोटं नाही बोलणार, हे खरंच खूप सुंदर आहे। इथे काही सोनं बिनं नाही सापडलं तरीही मी या प्राचीन स्मारकांना भेट देऊ शकलो आणि ते तुमच्यासोबत शेअर करू शकलो, याबद्दल मी कृतज्ञ आहे। गाइस, आई लव्ह यू मैक्सिको, मला खूप मजा आली। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल या परसों और एक वीडियो आएगी। रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा पर मैं डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो कोई अच्छा टॉपिक ढूंढ रहा हूँ, जैसे तुम्हारा चैनल कैसे ग्रो हो जल्दी से, तो वही है, तो मैं इसलिए ये डाल रहा हूँ। बात है, मिलते, बाय बाय।